सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणाय नमो यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। Sorry for the hiccups. I'm not used to this tablet. Never use this recorder and all that. Let's see how it works, whether it works first of all. So we are looking at this Tippana here. The Tippana was on Jnanam Utpadhyate. Atmana sa manasa sanyogena Jnanam Utpadyate. And the Anka is, it's long back, we are continuing a long distinct discussion on Nyaya. On the 10th point, Nyaya Mate Tadrusha Dukkha Dhamsaya Moksha. Rajgopal ji, did you have something to say? You are muted. Both you and the screen both are not visible. आप भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन भी नहीं, आपका वो भी दिख रहा है. PDF is not seen? No. Oh. No, PDF is not seen. Okay. What happened with the Google? And neither you are seen. That's what we wanted to say. That screen. It looks like if I okay, I can share or record an app. Seems like that. I'm not sure. Let's see. The record is on. Is it visible now? Yes. Yeah, it's okay. It's okay now. Okay, let's hope that the screen is getting recorded. Let's see. Okay. So, Nyayamate Tadrusha Dukkha Dhamsaya Moksha. So, you've seen that this Ekayumshati Dukkhanam Dhamsaha is called as Moksha in Nyaya Vaisheshika Mata. Now, what is being said is Nyayamate Tadrusha Dukkha Dhamsaya Moksha. We looked at some Akshepas and Samadhana for that. In that, there was a Tippana here which said, okay, where is the Tippana gone? Yeah. So, here the last line was in the Tippana, Karya Karana Guna Guni Kriya Kriya Vat Jati Vyakti Adi Nam Bheda Kalpana Atyanta Veda Bahya iti Aparigraha cha Atyanta Manapeksha ityadu Sutra Bhashya Karadibhi Pradarshitam. So anyway, Vyasa Purnima, Guru Purnima, so we can start with this Vyasa Sutra itself, Brahma Sutra. So it is Aparigraha cha Atyantam Anapeksha, 2 to 17. So what does that say? In the Tarka Nirakarana, it's in the, what is the Adhikarana there? So there in the Parmanu Jagat Karanatvadi Adhikaranam, 2 to 3, Adhikarana third, there is a sutra which says Aparigrahacha Atyantam Anapeksha. Just before this Adhikarana, actually not this Adhikarana particularly, but Sankhya Nirakarana has been done in the Brahma Sutra sequence. This is second Adhyaya is Avirodha Adhyaya. So in the Avirodha Adhyaya, wherever there is, अरे ये हिंदी का पार्ट है, मैं अंग्रेजी में शुरू कर रहा हूँ, किसी ने बोला भी नहीं, चलिए हिंदी में शिफ्ट करते हैं, ये हिंदी का पार्ट है. तो ये अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा ये सूत्र देख रहे थे. यहाँ पे क्या है कि ये दूसरे अध्याय में अविरोध अध्याय जो है उसका उसमें पहले सांख्य मत का निराकरण हो गया, अभी न्याय मत का निराकरण कर रहे. तो सांख्य मत का निराकरण करते समय जो कारण सत्कार्यवाद है उसमें क्या है कि प्रधान कारण है जगत कारण है, ये जो सांख्य का मत है उसका निराकरण कर दिया सिद्धांति ने.
और उसके आगे जब न्याय मत का निराकरण कर रहे हैं तभी क्या कह रहे हैं कि ये सांख्य का जो सत्कार्यवाद है उसमें प्रधान कारण है ऐसे कुछ मानते हैं। वो मुख्य पूर्व पक्ष है, सांख्य मुख्य पूर्व पक्ष है सिद्धांति के लिए, वेदांति के लिए। तो वो जो मुख्य पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधान कारण है जगत का, वो तो कुछ लोग मानते हैं, वेद में भी कई संदर्भ में ऐसे लग जाएगा कि प्रधान कारण है, किंतु जब ही न्याय मत देखते हो आप, उसमें परमाणु कारण है ऐसे जो भी दिखता है, तो परमाणु तो जड़ है, प्रधान भी जड़ है, किंतु प्रधान को तो पुरुष के साथ जोड़कर कुछ तो माने प्रधान पुरुष से जुड़ जाती है, किंतु पुरुष प्रधान से नहीं जुड़ता। ऐसे मानकर कोई प्रधान को कारण कैसे भी समझ लेते हैं, किंतु परमाणु जो है जड़ है और अणु है, ये जगत कारण हो सकता है, ऐसे जो भ्रांति है सबकी, इसे कोई नहीं मानता कि ये वेद से विरुद्ध है। इसीलिए कहते अपरिग्रहात। अपरिग्रहात माने वहां पे कि शिष्ट ही अपरिग्रहात, कोई शिष्ट इसको नहीं मानते। कोई भी शिष्ट जो है प्रधान को मान लेंगे, किंतु माने प्रधान में भी कुछ तर्क लग जाएगा। इसलिए निराकरण में बहुत सारा प्रयास किया है सिद्धांति ने, किंतु तार्किक जो है वो तो केवल तर्क को लेकर सिद्ध कर रहा है। प्रधानवादी तो उसमें तर्क का प्रयोग है, किंतु वो श्रुति लेकर आते हैं, कहीं कहीं श्रुति लेकर आते हैं और श्रुति को घटाते हैं। अव्यक्त शब्द घटा का प्रयोग किया गया है, तो अव्यक्त को लेकर प्रधान में घटा देते हैं। जैसे प्रकृति को भी अव्यक्त कहते हैं, सिद्धांति भी कहता है अव्यक्त, उपनिषद में आया है। तो उनके लिए तो कुछ आधार मिल जाता है, विचार करने से निराकरण हो जाएगा। किंतु कहीं कहीं श्रुति में अव्यक्त शब्द का भी प्रधान अर्थ ले सकते हैं, गलत है फिर भी कोई ले सकता है, और ऐसे प्रधान को कोई शिष्ट मान लेता है कि जगत कारण है, अव्यक्त जगत कारण है, चैतन्य नहीं होते हुए भी जगत कारण है, ऐसे कोई मान लेते हैं शिष्ट। किंतु तार्किक का जो परमाणु है उसका तो कहीं भी श्रुति में आधार है ही नहीं, आश्रय ही नहीं मिलता। इसीलिए शिष्ट के द्वारा अपरिग्रहात, अपरिग्रहात शिष्ट कोई मानता ही नहीं है इसको। अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, अत्यंत माने श्रेयोर्थी भी अत्यंतम अनपेक्षा कर्तव्य, कर्तव्य करके अध्याय करके इस सूत्र का अर्थ करना चाहिए कि किसी भी अंश में, परमाणु कारणवाद का किसी भी अंश में किसी के द्वारा भी, शिष्ट के द्वारा परिग्रह नहीं किया गया, कोई भी नहीं मानता, कोई भी शिष्ट नहीं मानता। इसीलिए इसे अत्यंत दूर से त्याग कर देना चाहिए। अनपेक्षा माने इसका परमाणुवाद का तो कारणवाद का दूर से त्याग करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। इत्यादि सूत्र भाष्यकार आदि भी प्रदर्शितम, ऐसे भगवान भाष्यकार ने दिखाया है, सूत्रकार ने तो सूत्र में ही कह दिया, भगवान व्यासाचार्य ने, और भाष्यकार भी उसका लंबा प्रकरण है, उसमें लंबा अधिकरण है, उसमें पूर्व पक्ष लेकर उसका निराकरण करते, सिद्धांति निराकरण कर देते हैं। तो ये हो गया, ये एक रह गया था। उसके बाद ये अंक तो हो गया था लगता है, तस्मात् संयोगात् मनयो मोक्षकाले नास्ति क्रिया न कदापि भवति अनुभवति। हाँ, ये देखा था, यथा मूल में देखा था, यथा वृक्ष, क्योंकि ये ज्ञानम उत्पत्ति देख लेते हैं, आत्मना सह मनसा संयोगेन ज्ञानम उत्पद्यते, ये उनका न्याय का मत है। तो उसमें निराकरण अपने टिप्पणी में देख लिया। सच संयोग, ये संयोग जो है आत्मा और मन का संयोग होना चाहिए। सिद्धांत कहता है सच संयोग, कौन सा संयोग? आत्मा और मन का संयोग। कहते न्याय सिद्धांते अन्यतरस्य क्रिया अथवा उभयो क्रिया भवति। ये संयोग कैसे होता है? संयोग तो या तो हमने देखा है कि दोनों, जैसे दो हाथ है, दो हाथ एक साथ आ जाएंगे
तो दोनों हाथों में क्रिया होगी तब संयोग संभव है, या एक हाथ में क्रिया होगी तो संभव है, ऐसे हमने देखा था। तो सच संयोगा न्याय सिद्धांते अन्य तरह से मैंने दोनों में से कोई एक, दोनों में संयोग होता है तो दोनों में से किसी एक में क्रिया होगी, क्रिया या उस क्रिया के द्वारा, अथवा उभयो क्रिया, दोनों में, दोनों जो जिनमें संयोग हो रहा है दोनों में जब भी क्रिया होगी उन दोनों क्रिया के द्वारा भवति संयोगा भवति। यथा, जैसे उदाहरण देते, यथा एक वृक्ष विहगयो हो, विहग माने आकाश, अभी कहते वृक्ष विहगयो संयोग, ये विहग माने आकाश में उड़ने वाला पंछी, माने उसको विहग कहते, विहे गच्छति इति विहग, तो उड़ने वाला पंछी, तो इसके लिए वृक्ष और पक्षी का जो संयोग है वो कैसे होगा, विहगस्य एकस्य एव क्रिया भवति। वृक्ष तो हिल नहीं रहा है, पक्षी आकर बैठ रहा है, इसलिए पक्षी में क्रिया हो रही है, तो पक्षी आकर वृक्ष में बैठ गया, वृक्ष स्थिर है, किंतु क्रिया हुई पक्षी में और पक्षी आके बैठ गया, तो उसमें उन दोनों में संयोग हो गया। या दूसरा क्या है, द्वयो हो मेषयो, ये देखा था हमने, दो मेष है, प्राणी है, उनमें संयोग हो गया। तो वैसे तू उभय क्रिया भवति, दोनों में क्रिया, दोनों मेष में क्रिया हो रही है और दोनों झगड़ा कर रहे हैं, जैसे सींग से लड़ते हैं, तो उनमें संयोग हो गया। तथा विभो आत्मनि क्रिया न कदापि भवति। अब ये आत्मा जो है ये विभु है, इस विभु आत्मा ने तो कभी भी क्रिया संभव ही नहीं है, इसीलिए मोक्ष काले मनसी अपि क्रिया न भवति, इसलिए इनमें संयोग संभव नहीं है। और मोक्ष काल में क्या होगा, मन में भी क्रिया नहीं हो सकती, इसीलिए क्या है कि आत्मा में क्रिया नहीं होगी, मन में भी क्रिया नहीं होगी, और दोनों में क्रिया के अभाव होने से एक में भी क्रिया संभव नहीं है, दोनों में तो है ही नहीं, एक में तो संभव ही नहीं है, इसीलिए क्या है, संयोग नहीं हो पाएगा। यदि संयोग नहीं हो पाएगा तस्मात् संयोग वत मनः एव मोक्ष काले नास्ति, संयोग संभव नहीं है, संयोग वाला मन तो संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। मोक्ष काल में मन में संयोग नहीं होगा, मन में क्रिया नहीं उत्पन्न होगी, इसीलिए मन का आत्मा के साथ संयोग नहीं हो पाएगा। ऐसा निराकरण कर दिया, 10वां अंग था, और इससे 256 अंग समाप्त हो गया। 257 में कहते, त्वं मनसो संयोगेन आत्मनि ज्ञानम उत्पद्यते, आत्मा स्वभावतः जड़ इति एकदेशी नैयायिक मतम। एकदेशी, जैसे वेदांत में एकदेशी है, वैसे ही आपके न्याय मत में भी एकदेशी है। क्या कहता है वो कहता है आत्मा स्वभावतः जड़ है, आत्मा जड़ है, स्वभाव से आत्मा जड़ है, और त्वगिंद्रिय मनसः संयोगेन आत्मनि ज्ञानम उत्पद्यते, तो त्वगिंद्रिय और मन का संयोग हो रहा है, उसमें स्पर्श का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। और आत्मा स्वभाव से जड़ होने पर भी आत्मा में जो ज्ञान गुण है ये उत्पन्न हो जाएगा। देखेंगे क्या है पक्ष इनका। कश्चन एकदेशी, कोई एकदेशी है, टिप्पणी में दिए, कश्चन नैयायिक एकदेशी त्वचा सह मनसा संयोगम ज्ञान से हेतु आह। ज्ञान का हेतु क्या है, मनसा संयोगम, हेतु वहां तो करता है कश्चन नैयायिक एकदेशी, वो करता हो गया, वह सह आह क्या कहता है, हेतु माह, कोई हेतु बताता है। क्या हेतु बताता है, ज्ञान का हेतु बताता है। किसका हेतु, ज्ञान का। क्या है वो हेतु, संयोग। तो संयोग को हेतु मानता है वो। किसमें संयोग, कहता है त्वक और मन का, त्वचा का मन के साथ संयोग हो जाता है, वो ज्ञान का कारण है, नहीं तो आत्मा जड़ है, ऐसे कहता है। तन्न युक्तम, इसका खंडन कर रहे। क्या खंडन है, यथा मनसा सह आत्मनः संयोगः ज्ञान हेतुः इत्यत्र न किमपि प्रमाणम अस्ति। ये मन का आत्मा के साथ संयोग होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसका निराकरण सिद्धांति ने 356 अंक में कर दिया। जैसे उसमें कोई प्रमाण नहीं है, वैसे
त्वक का आत्मा के सत्संयोग में क्या प्रमाण है? उसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। त्वगिंद्रिय का आत्मा के साथ संयोग होता है, इसमें क्या प्रमाण है? मन का आत्मा के साथ संयोग होता है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। वैसे ही त्वगिंद्रिय का आत्मा के साथ संयोग होने में भी कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे सिद्धांत कह रहा है। यथा मनसा स आत्मन संयोग ज्ञान हेतु, ऐसे जो कथन कर दिया दूसरे नैयायिक ने, जो पहले देखा हमने एक अपक्ष जो मुख्य पक्ष है, इत्यत्र न किमपि प्रमाणम अस्ति, किमपि प्रमाणम नास्ति, कोई प्रमाण है ही नहीं। तथा वैसे ही क्या त्वचा से संयोग ज्ञान हेतु, या ज्ञान हेतु लिखा है, ज्ञान न छूट गया, ज्ञान हेतु होना चाहिए। वैसे ही क्या त्वचा से संयोग ज्ञान हेतु इत्यत्रापि, ये एकदेशी नैयायिक का मत है। इसमें भी इत्यत्रापि श्रुत्यादि रूपम किंचिदपि प्रमाणम नास्ति, श्रुति हो स्मृति हो ऐसे कोई किंचिदपि कोई प्रमाण है नहीं, कहीं नहीं मिलता है। दूसरा कहते हैं कि प्रमाण सिद्ध स्वकपोल, प्रमाण असिद्ध, क्षमा कीजिए, प्रमाण असिद्ध स्वकपोल कल्पित वस्तुभ्युपगमे, अभ्युपगमाद, यदि मान ले, क्या मान ले? हम यदि प्रमाण नहीं है तो भी मान ले। सिद्धांति कहेगा प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्षी कहेगा चलिए प्रमाण नहीं है, फिर भी हमारे ग्रंथ में है, वही प्रमाण मान ले। तो कहते वो तो स्वकपोल कल्पित है ना, वो तो आप ऋषि बोलिए, चलिए ऋषि है, जैसे सांख्य कहते हैं वो है, कणाद ऋषि है, ऐसे कह देंगे आप। कपिल जैसे सांख्य के ऋषि है, वैसे आपके कणाद ऋषि है, गौतम ऋषि है। ऐसे न्याय वैशेषिक ग्रंथ में आप भी ऋषि मानते हो उनको, यदि गौतम ऋषि कह देंगे। कणाद कणमत्ती इति कणाद, कि वो भिक्षा मने कैसे, भिक्षावृत्ति नहीं, भिक्षावृत्ति देखिए, भिक्षावृत्ति कैसे एक अजगर वृत्ति है, बैठ जाए आ जाए खाएंगे, नहीं मिला तो उपवास। कोई लेकर आ गया भिक्षा, बैठ जाएंगे, कुछ मिल जाए, यदि कोई लेकर आ गया, कहीं बैठ गए, गुफा में बैठ गए, कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ठीक है, अजगर वृत्ति कहते हैं। जैसे अजगर ढूंढने नहीं जाता, बैठा रहता है, कुछ आ गया तो निगल लेता है, अजगर वृत्ति भिक्षा की। दूसरी है मधुकर वृत्ति, कहते हैं मधुकरी करता है, जा जाकर कुछ 5 घर में भिक्षा मांगेगा, जिस घर में मिल जाए ठीक है, 3 बार नारायण नारायण कहेंगे, मिल जाए भिक्षा ठीक है, अभी मांगना नहीं है भिक्षा। ब्रह्मचारी तो जाकर मांगता है भवती भिक्षान जी, सन्यासी को कहा नारायण नारायण कहेगा, भिक्षा देंगे ठीक है, नहीं जाएंगे दूसरे घर, ऐसे करते 5 घर, तो कहते इसको मधुकरी कहते हैं। अभी तो अग्रहार नहीं रहा, भिक्षा संप्रदाय कम होगी, कहीं कहीं है, पूरी लुप्त नहीं हुई है। अभी ये क्या कहते हैं, ये कणाद क्या थे, वो क्या कहते थे कि ये जब भी जहां धान्य रखते हैं, ले जाते हैं, उसमें धान गिरता है, जब भी गिरता है उसके कण जो है, उस कण इकट्ठा करते थे, गिरे हुए भूमि पे जो कण गिरते हैं धान के, उसको इकट्ठा करते थे, उसमें जितना मिल जाए वही कण खाते थे। माने वो तो वैसे भी क्या, कण जो गिर गया उसका तो कोई भक्षण नहीं करता, माने उसको इकट्ठा करके तो नहीं ले जाते, माने जो ले जा रहे वो जो उसमें से गिर रहा है उसको तो क्या है कि वो तो वैसे भी व्यर्थ जाने वाला है, ऐसे मानकर वो गिरा हुआ कण इकट्ठा कर कर कण खाते थे, कणाद कहते थे। देखिए ऐसा तपस है इनका, हम मानते हैं हाँ तपस है, हमको तपस के लिए तो हम प्रणाम करते हैं उनको, नतमस्तक होते, ऐसा तपस हम में भी आ जाए ऐसे कहते, किंतु उन्होंने जो रचना की उस ग्रंथ को हम माने ऐसा नहीं है। जिसका तपस है, तपस उस अंश में तो महिमा है, किंतु ज्ञान में महिमा है ऐसा नहीं मानेंगे। तो कहते हैं प्रमाण असिद्ध जो सकपोल कल्पित है, यदि उन्होंने कल्पना की और प्रमाण जो श्रुति स्मृति इत्यादि प्रमाण है उससे सिद्ध नहीं हो रहा है, तो स्वकपोल कल्पित वस्तु, ये वस्तु हो, इसको ग्रंथ जो है उसको वस्तु मानकर कहेंगे ये जो ज्ञान है ये वास्तविक नहीं होगा। और यदि वस्तु ऐसे मान ले, अभ्युपगमे, ऐसा यदि मान ले, वास्तविक मान ले, तो कहते मृग तृष्णांबसी स्नातः ख पुष्प कृतशेखरः एष वंध्यासुतो याति शशशृंग
धनुर्धरः इत्यादि वाक्यार्थ अपि अंगीकार्यो भवेत्। उसको भी मानना पड़ेगा, ऐसा वाक्य का अर्थ भी मानना पड़ेगा। कैसा वाक्य है? कहते स्नातः, कोई है स्नातः, स्नान कर लिया, किसी व्यक्ति ने स्नान कर लिया। किसमें स्नान कर लिया? कहते मृगतृष्णा अंबसी, ऐसे अंबस में, ऐसे पानी में स्नान किया जो मृगतृष्णा है, मिराज वाटर। कहते हैं रेगिस्तान में जहां पानी की भ्रांति होती है, उस जल में जो नहाकर आए हैं, कौन है वो? कहते खपुष्प कृतशेखरः, कहते हैं उन्होंने अपने जटा में क्या डाला है? अलंकार किया है, पुष्प रखा है जटा में, केशों में। कहते खपुष्प है, आकाश में एक पुष्प उगा था, उस पुष्प का अलंकार बनाया है इन्होंने नहाकर। कहते हैं कि अलंकार करेंगे अपने जटा में, तो जटा में उन्होंने पुष्प रखा है जो ख पुष्प है, भूमि पर नहीं उगा है। कहते वो पुष्प आया है, आकाश में उत्पन्न हुआ है, उस पुष्प को तोड़कर उन्होंने सुंदर अलंकार, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, नहाकर आए हैं और अलंकार किया है ख पुष्प का। और कौन है वो? कहते वंद्यासुत, वंद्या का पुत्र है ये। तो माता वंद्य है, संभव है क्या? तो कहते और क्या है? और ऐसा नहीं है, आपको लगता है पुष्प लगा है तो कोई जैसे कहते हैं कि अरे ये क्या है कि अलंकार किया पुष्प, ये क्या युद्ध करेगा? तो युद्ध भी करेंगे, ये क्षत्रिय है। कहते हैं कि शशशृंग जो है उससे धनुहु बनाया है, वो पकड़े हुए है धनुर्धरा। तो जो ये वंद्यासुत है वो मृगतृष्णा के अंबस में नहाकर ख पुष्प से अपने जटा में अलंकार कर कर धनुर पकड़कर हाथ में आगे, किसका धनु है? कहते कि बहुत ही जैसे वज्र जैसे, कहते थे शश का श्रृंग है, श्रृंग से बना हुआ धनुर है, उससे युद्ध करेंगे, उसको भी मान लीजिए। तो कहते हैं वाक्यार्थ ही नहीं समझ में आएगा, पहले कहेंगे चलिए चार चार शब्द है इसमें, वंद्यासुत है वो सिद्ध नहीं होगा, शशशृंग से धनु जो बना है उसको पकड़े हुए, शशशृंग भी सिद्ध नहीं होगा, तो उसका धनु कैसे सिद्ध होगा? कितने सारे दोष है। मृगतृष्णा ही नहीं है तो उसमें अंबस क्या? मृगतृष्णा अंबस नहीं है तो उसमें कैसे नहा लिए? और ख पुष्प भी नहीं होता, उससे अलंकार कैसे किए? तो एक भी शब्द का अर्थ नहीं लग रहा है। और कह दिए याति, जा रहा है, गच्छति, तो गच्छति का कर्ता ही सिद्ध नहीं हो रहा है, याति गच्छति, याति का कर्ता सिद्ध नहीं हो रहा है। इत्यादि वाक्यार्थों भी अंगीकार्य हो, क्योंकि कहते अरे इसको मान लीजिए, तार्किक कहेगा अरे नहीं इसमें कुछ एक भी शब्द का अर्थ नहीं बैठ रहा है, तो कहते ये तो कल्पित है ना, हम कल्पना करेंगे। जैसे आपने कल्पना की पूरे तर्क ग्रंथ में ऐसे संयोग हो जाएगा, मन का जैसे संयोग हो रहा है आत्मा के साथ, या त्वगिंद्रिय का आत्मा के साथ संयोग हो रहा है, वैसे आपने कल्पना की। प्रमाण असिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध नहीं है, प्रमाणेन असिद्ध, प्रमाणेन न सिद्ध इत्यर्थ, अप्रमाण सिद्ध इत्यर्थ। ऐसे वाला आपने जो मान लिया ग्रंथ, तो हम भी मान लेंगे मृगतृष्णांबसी इत्यादि इत्यादि वाक्यार्थोपि अंगीकार्यो भवेत्। तस्मात् त्वचा सह मनसा संयोग न ज्ञान हेतु, मने भवेत् क्या? शक्यार्थे लिंग, संभव है क्या? कहते असंभव, यह असंभव है, असंभव है। इसीलिए तस्मात् आपको भी जो कल्पित है प्रमाण यदि नहीं होगा तो आपके न्याय ग्रंथ से आया, इसीलिए मानने की आवश्यकता नहीं है। कहते त्वचा स मनसा संयोग, उसमें कोई ज्ञान उत्पन्न करने के लिए ही हेतु मानते आप, पर कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए वो हेतु बनेगा ही नहीं ज्ञान के लिए। हेतु नहीं बनेगा तो इसीलिए त्वक के साथ मन का संयोग नहीं मानेंगे हम। तीसरे अंक में कहते हैं सुषुप्तौ त्वचा मनसा संयोग अभावे अपि प्रज्ञावताम बुद्ध्याद्यगम्यम सुख अज्ञानयोः ज्ञानम नहीं क्या है, सामान्य ज्ञानम भवति। फिर क्या कहते हैं, यदि त्वगिंद्रिय और मन का संयोग होने पर ही ज्ञान उत्पन्न होता तो सुषुप्ति में सुख का और अज्ञान का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सुषुप्ति में तो त्वगिंद्रिय का संयोग नहीं हो पाएगा आत्मा के साथ, और सुषुप्ति में त्वचा मनसा संयोग अभावेपि,
जागृत में यदि होता ऐसा मान भी ले तो भी सुषुप्ति में तो नहीं हो रहा है। फिर भी क्या है कि प्रज्ञावताम बुद्ध्यादि अगम्यम, प्रज्ञा वाले जो है, जो विचार शक्ति रखते हैं, उनके लिए क्या है कि बुद्धि आदि से जो नहीं जाना जा सकता है वैसा सुख और अज्ञान जो है, उसका सामान्य ज्ञान सुषुप्ति में प्राप्त होता है, सबको हो जाता है। विचार करते हैं तो प्रज्ञावताम बुद्धि वाले, वैसे वालों को जो भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे सामान्य ज्ञान सभी को उत्पन्न होता है सुषुप्ति में। कैसा ज्ञान? सामान्य ज्ञान किसका? सुख का, सुखमहम अस्वाप्सम। और अज्ञान कैसा? न किंचित अवेदिशम, कुछ भी नहीं जाना। तन्न स्यात्, वो नहीं होता पर होता है। तन्न स्यात् त्वं मनसो संयोग से ज्ञान हेतुत्व अभ्युपगमे। यदि मान ले ज्ञान का हेतु मान ले त्वगिंद्रिय और मन का संयोग ही ज्ञान का कारण है, तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता पर होता है। इसीलिए क्या त्वगिंद्रिय और मन का संयोग ज्ञान का हेतु नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तस्मात् त्वं मनसो संयोग न ज्ञान कारणम, इसीलिए ज्ञान का कारण तो ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। किंतु आत्मनः स्वरूपमेव अज्ञानम इति श्रुति सिद्ध अर्थः अंगीकर्तुम उचितः। इसीलिए क्या मानना पड़ेगा आपको? आत्मनः स्वरूपमेव ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो प्रज्ञान घन ब्रह्म है, वो उसमें जो ज्ञान शब्द है उसका स्वरूप है, ना कि उसका गुण है, ना ही किसी अन्य के साथ संयोग होकर आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। ये सब स्वकपोल कल्पित है, प्रमाण सिद्ध है इति। इसीलिए क्या है कि आत्मन स्वरूपमेव ज्ञानम, इसके लिए तो प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। इसलिए श्रुति सिद्ध जो है, प्रमाण सिद्ध जो है, वही अर्थ अंगीकर्तुम उचितः, वो अर्थ ही मानना पड़ेगा, यही उचित है। ये कह दिया, ये पहला टिप्पण हो गया। इसमें अभी टिप्पण में किस पे था? कश्चन एकदेशी त्वचा स मनसा संयोगम ज्ञानस्य कारणमाह, ये था मूल में। आगे मूल में आत्मनः स संयोगम न कारणम आह। क्या कहते हैं? आत्मनः स संयोगम न कारणम, मन का आत्मा के साथ संयोग कारण नहीं मानते। क्या मानते? मन का त्वचा के साथ संयोग मानते। क्षमा कीजिए, त्वचा स मनसा संयोग, इधर क्या था टिप्पण में? क्या देखा? यहाँ त्वचा स मनसा संयोग, मैंने थोड़ा गलत कह दिया। एकदेशी त्वचा के साथ आत्मा का संयोग मानता है, मैंने ऐसे कहा था, ये गलत है। एकदेशी क्या मानता है? त्वचा के साथ मन का संयोग मानता है, आत्मा का नहीं। मुख्य न्याय मत में मन का आत्मा के साथ संयोग मानते हैं वो, और एकदेशी नैयायिक मानता है त्वचा के साथ मन का संयोग, आत्मा नहीं है उसमें, त्वचा के साथ मन का संयोग, और मानता है वो स्वरूप से आत्मा जड़ मानता है। तो ऐसे वो ज्ञान का हेतु मानता है। तो यहाँ पे क्या कह दिया? उसका खंडन कर दिया। अभी कहते कश्चन एकदेशी त्वचा स मनसा संयोगम ज्ञानस्य कारणमः आत्मना स संयोगम न कारणमः, आत्मा के साथ मन का संयोग ज्ञान का कारण वो नहीं मानता। मन का माने मन बीच में समझिए। मुख्य मत क्या है कि मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है। वास्तविक क्या है कि मुख्य मत में क्या है कि मन का आत्मा के साथ संयोग होता है और मन का इंद्रियों के साथ भी संयोग होता है। एकदेशी आत्मा के साथ संयोग मानता ही नहीं है। वो क्या मानता है? त्वगिंद्रिय का माने इंद्रिय का मन के साथ संयोग ज्ञान का हेतु ऐसे मानता है। तो इसमें क्या कहते हैं? सुषुप्तौ पुरीतन नामक नाड्याम मनः प्रविशति। पुरीतत करके एक नाड़ी हमने देखा है, पहले भी है। सुषुप्ति में क्या होता है? पुरीतत नाड़ी है, पुरीतत नाड़ी में उसका नाम है, इसीलिए नाड़ी वहां पे नाड़ी जो है पुरीतत नामिका होगी बहुरी में। तो पुरीतत नाम जिसका है, वैसे वाले जो नाड़ी है उसमें नाड्याम मनः प्रविशति, मन प्रवेश कर लेता है। अतः त्वचा स मनसा संयोग नास्ति। सुषुप्ति में मन का संयोग कैसे हो जाएगा? मन तो चला गया पुरीतत नाड़ी में और त्वक उसके बाहर है, त्वगिंद्रिय, तो उसका संयोग कैसे होगा मन के साथ? कभी सुषुप्ति अवस्था में। तस्मात् सुषुप्तौ ज्ञानम न उत्पद्यते, सुषुप्ति में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। एतन्मते त्वचा सह संयुक्त मन एव ज्ञान द्वारा दुख हेतुत्वात् दुःखमित्युच्यते। क्या कहते हैं?
एतन्मते माने इस एकदशी के मत में, एकदेशी नैयायिक के मत में क्या है, त्वचा स संयुक्तम मना, संयुक्तम मना माने संयोग हो गया, जिसने प्राप्त कर लिया, मन जिसने त्वगिंद्रिय के साथ संयोग प्राप्त कर लिया उसको कहेंगे संयुक्तम मना, त्वचा स संयुक्तम मना। एव ज्ञान द्वारा दुख हेतुत्वात्, ज्ञान के लिए हेतु है, इसीलिए हेतु वो ज्ञान का है, और ज्ञान को मारेंगे दुख, दुख का हेतु हो गया ज्ञान, तो कहते हैं ज्ञान द्वारा दुख हेतुत्वात् दुखम इत्युच्यते, उसको दुख कह देंगे, किसको, मन को कह देंगे। ज्ञान उत्पन्न करता है कौन, मन। कैसा मन, त्वगिंद्रिय के साथ जिसने संयोग प्राप्त कर लिया, वैसा वाला मन ज्ञान के द्वारा दुख उत्पन्न करता है, इसीलिए उस मन को दुख कह देते। सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है? वीडियो रुक रुक के आ रहा है, बीच में जा रहा है क्या, शब्द जा रहा है, क्या हो गया? हाँ, गैप आ रहा है, बोलिए क्या? आप बोलिए। अच्छा, देखते हैं, कुछ लैपटॉप बीच में मेरे चार्जिंग के लिए रखा है, उसको चार्ज नहीं हो रहा है, देख रहा था, उसको बंद कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए रेंज की दुविधा है, कुछ दिन प्रयास करेंगे ऐसे, यदि ठीक नहीं हो रहा तो त्याग करना पड़ेगा 2 महीने इस पार्ट का, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये रेंज आते जाते रह रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा बिजली बहुत बार जाती है, और लगता है कि टावर में बैकअप नहीं है, तो टावर भी कभी कभी चला जाता है, कभी 5G चला जाता है, 4G में चला जाता है, कभी उसमें रेंज चला जाता है। कल तो दोनों इसमें वोडाफोन और जियो दोनों में बहुत देर तक रेंज ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये टावर में भी अधिक बैकअप नहीं रखे लगता है, इतनी बिजली जाती है, अभी पहाड़ों में कहाँ से वो करेंगे, इसीलिए देखते हैं क्या प्रारब्ध है पाठ का, प्रयास करेंगे, नहीं हुआ तो ऑडियो पार्ट करने के लिए रेंज तो चाहिए वो भी प्रयास कर सकते हैं, कि देखते हैं कि वीडियो नहीं हो पा रहा है तो ऑडियो प्रयास कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा तो भगवती की इच्छा तो ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, अभी जो पुरी तत्व नाड़ी में ये मन प्रवेश कर लिया, तो त्वगिंद्रिय के साथ उसका संबंध नहीं हुआ, जैसे सुषुप्ति में है वैसे ही मोक्ष में भी आगे बताएंगे। तो ये क्या संदर्भ है कि सभी 21 दुखों का नाश होना चाहिए, उसी को मोक्ष कहेंगे तार्किक। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान द्वारा ये त्वगिंद्रिय के साथ संयुक्त जो मन है वो ज्ञान के द्वारा हेतु बन रहा है दुख का, इसीलिए उसको दुखम इत्युच्यते न तो केवलम मनः। तो सिद्धांति जी जो कहा था कि मन जो है ना, ये मन तो रहेगा, तो ये दुख है, इसीलिए 21 दुख में कम से कम एक तो रह जाएगा, तो आपके मोक्ष में जो 21 दुखों का नाश कह दिया है वैसा वाला मन तो रह जाएगा, तो मन का तो नाश नहीं हो रहा है। तो अभी कहता है वो मोक्षे त्वचा त्वचा नाशात तया सह संयोग अभावात ज्ञानम न उत्पद्यते। तो क्या हो रहा है कि मोक्षे त्वचा नाशात, त्वगिंद्रिय का नाश हो गया। मन क्या है, मन तो देखिए नित्य है, उनके लिए मन तो क्या है कि नित्य है, तो अभी मोक्ष में त्वगिंद्रिय का तो नाश हो जाएगा कहेगा, तो उसके इसलिए क्या है कि केवल मन दुख का कारण नहीं है, मन का और त्वगिंद्रिय का जो संबंध हो रहा है ना संयोग, उसको दुख का कारण यदि मानेंगे और उसको दुख कह देंगे, वैसे मन को संयुक्त मन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किसके लिए दुखम, दुख हेतुत्वा दुखम, कौन, मन, पर केवल मन नहीं। एकादेशी क्या कह रहा है कि ये मन जो है वो नित्य है, वो मोक्ष में रहेगा, किंतु संयुक्तम, त्वचा से संयुक्तम मन, जो विशेषण जोड़ दिया ना, वैसा वाला मन नहीं रहेगा। यदि वैसा वाला मन नहीं रहेगा मोक्ष में, तो दुख का तो नाश हो गया, क्योंकि संयुक्त मन का नाश हो गया, मन भले ही रहने दो, किंतु त्वचा सह संयुक्तम मन का नाश हो गया। तो कहते हैं मोक्षे त्वचा नाशात, त्वगिंद्रिय का नाश हो गया, इसीलिए संयुक्त मन नहीं रहा,
मन रहा पर संयोग अभावात ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मोक्ष काले मनः अस्ति, मोक्ष काले मनः अस्ति परंतु दुख हेतु ज्ञान जनकम त्वक्संयुक्तम यत् मनः तन नास्ति तस्य संयोग नाशात नाशो भवति। कहेंगे मन का नाश नहीं हो रहा है, हम मानते मन नित्य है, हमने कह दिया, हम अभी अभी अपने बात पर नहीं फिरेंगे, हमने जो बोल दिया सत्य वचन तो कह देगा तार्किक, कह दिया हमने तो कह दिया, जो कह दिया पत्थर की लकीर, हम कहेंगे मन तो है नित्य है, हम नहीं कहेंगे अभी मोक्ष के लाभ से, मोक्ष के आशा से नहीं, मोक्ष सिद्ध नहीं हो रहा, 21 दुखों का नाश नहीं हो रहा है, तो चलिए कह देंगे नहीं मन का भी नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमने कह दिया मन नित्य है तो नित्य है, किंतु संयुक्त मन नित्य नहीं है। त्वक के साथ जो इसका संबंध हो गया ना, त्वक इंद्रिय का तो नाश हो गया, हमने तो पहले कह दिया इंद्रियों का नाश हो जाएगा, तो त्वक इंद्रिय का यदि नाश हो गया, इंद्रियों का नाश हो गया, तो मन का संयोग नहीं हो पाएगा उनके साथ। इसीलिए त्वचा नाशात, त्वचा नाशात त्वचा ससंयुक्त मना नास्ति मोक्ष काले। इसीलिए क्या हो जाएगा, परंतु दुख मोक्ष काले मना अस्ति, मन, हम देखिए हम कह रहे हैं कि मन तो है, पर मन के साथ जो विशेषण जुड़ गया ना, दुख हेतु ज्ञान जनकम त्वक संयुक्तम मनः यत् मनः, वैसा वाला मन नहीं है। दुख हेतु ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो त्वक के साथ संयुक्त मन है, वैसा वाला मन नहीं रहा। मन है पर संयुक्त मन नहीं है, इसीलिए तस्य संयोग नाशात नाशो होती, त्वचा का नाश हो गया तो इसीलिए त्वक इंद्रिय का नाश होने से त्वक के साथ मन का संयोग जो हुआ था पहले, उस संयोग का नाश हो गया। संयोग का नाश होने का, संयोग ही ज्ञान उत्पन्न करता था और ज्ञान दुख का हेतु था, वैसा वाला दुख नहीं रहा अभी, इसीलिए 21वां दुख भी चला गया, मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। 21 दुखों का नाश जो है वो हमारा लक्षण है मोक्ष का, वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसे तार्किक कहेगा। 11 अंक में कहते हैं, 10 अंक हो गए, अभी 11 अंक में कहते हैं इत्थम। इत्थम देखिए कैसा है ना, ये 11वां अंक जो जहां लिखा है ना, ये 256 में जो 10 था उसके आगे 257 में 11 है ये तो ये कंटिन्यू हो रहा है वहां से, जैसे जन्म जन्मांतर में संस्कार चलेंगे, एक अंक से दूसरे अंक में इनका 10 से गिनती चल रही है। तो कहते हैं इत्थम मोक्ष दशायां परमात्मनः भिन्नः दुख रहितः व्यापक आत्मा जड़ रूपः तिष्ठति। कहते देखिए आत्मा क्या है, आत्मा तो जड़ है, आप तो स्वरूप कह रहे हो ज्ञान, और दूसरे तार्किक कह रहे ज्ञान गुण बन जाएगा, तो कोई आक्षेप कह देगा, कर देगा, कैसा आक्षेप कर देगा, अरे देखिए आपका जो आत्मा है उसमें ज्ञान गुण है, तो ज्ञान तो चैतन्य में होता है, तो आत्मा आपका जो ज्ञानवान है वो तो जड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई आक्षेप कर देगा तार्किक पे। तो एकादशी कहता है अरे आत्मा तो जड़ है, कैसे जड़ है, इत्थम मोक्ष दशायां परमात्मना भिन्न, परमात्मा से भिन्न है ये आत्मा, दुख रहित है, 21 दुख रहित है, व्यापक भी है, ऐसा जो आत्मा है ये जड़ रूप तिष्ठति, क्यों, उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो संयोग से उत्पन्न हो रहा है ना मन का, तो संयोग तो होगा नहीं, तो ये जड़ रह जाएगा, एकादशी भी कहेगा, और क्या 21 दुखों का नाश हो गया, ये तो तार्किक, मुख्य तार्किक भी कहेगा ये जड़ जड़ रूप तिष्ठति। इसमें क्या है, अंक 1 टिप्पण है, 2 नंबर टिप्पण है, क्या है, न्याय मते आत्मा विभुर्जड़श्च इति अंगीकृतम। नैयायिक तो कहता है आत्मा जड़ है पर ज्ञान गुण है, कहता है मुख्य, मुख्य जो नैयायिक है वो कहेगा ज्ञान उसका गुण है, तो कोई ज्ञानवान कैसे, ज्ञान वाला तो जड़ कैसे होगा, ऐसा कोई आक्षेप कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे सिद्ध करते हैं आत्मा विभुः जड़श्च, ऐसा इनका सूत्र है तो कहते तद एतत् श्रुति विरुद्धम, तो कहते थोड़े आप तो आस्तिक मानते हो, आपने आपको ऐसे सिद्धांति कहता है, आप तो आस्तिक हो ना, श्रुति को मानते हो, श्रुति से विरुद्ध कथन करते हो और कहते हो कि हमारा ग्रंथ आस्तिक ग्रंथ है, कैसे होगा, जड़ कैसे होगा आत्मा, अत्र अयं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, ऐसे कथन है।
सुषुप्ति में भी है, वो वैसा ही है, स्वयं ज्योति ही रहेगा, मोक्ष में नहीं रहेगा। कहते अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती, बृहत मंत्र है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुषः, ऐसा भी बृहत मंत्र है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये पहले भी देखा है। इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य ही व्यापकस्य आत्मनश्चेतन स्वरूपत्वं श्रूयते। तात्पर्य क्या है इन सब मंत्रों का कथन करने का? चेतन स्वरूप है आत्मा का। अत्र अत्र कहीं भी हो, सुषुप्ति में हो कहीं भी, स्वप्न में हो, अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। ज्योति शब्द जो है वो क्या है? ज्ञान पर है। वो प्रकाश जो है, प्रकाश जो है वो वास्तविक प्रकाश नहीं है। रूढ़ी अर्थ जो है वो तो स्वयं ज्योति कह दिया। स्वयं ज्योति क्या है? अन्य को प्रकाशित करने वाला जो है उसको स्वयं ज्योति कह दिए, बीच में किसी की अपेक्षा नहीं है। तो ये जो है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अयम, यह अयम विज्ञानमय, विज्ञानमय, मयट यहाँ पे स्वार्थ में है, स्वरूप स्वरूपार्थ है, स्वार्थमय विज्ञान स्वरूप है ये। प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति ही, अंतर ज्योति ऐसा भी कहा है, अंतर ज्योति वैसा वाला पुरुष है। ज्योति शब्द भी ज्ञान पर है। सत्यम ज्ञानम, चैतन्य जो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म आत्मा के साथ समान अधिकरण में। ब्रह्म माने आत्मा, पुरुष माने आत्मा। ये सब क्या है? ये सब श्रुतियां कह रहे श्रुति वाक्य कह रहे हैं कि ज्ञानम, अंतर ज्योति ही, विज्ञानमय, स्वयं ज्योति, ये सब ज्ञान पर शब्द जो है वो अजड़ पर है, जड़ पर नहीं है। जड़ कैसे होगा? प्रज्ञानम, प्रकर्ष ज्ञान दिखा दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम भी कह दिया। प्रकर्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है, प्रकर्ष ज्ञान है, स्वरूप ही है उसका, इसीलिए जड़ तो नहीं सिद्ध होगा। इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य ही, कितने सारे श्रुति वाक्य उनके द्वारा व्यापक से आत्मन, जो व्यापक आत्मा है, व्यापक तो ठीक है, आपने कह दिया विभु, ठीक है, व्यापक, विभु माने व्यापक, आत्मा विभु जड़श्च, आत्मा विभु है उसमें तो व्यापक है, ठीक है, उस अंश में हम मानते हैं। पर जड़श्च कह दिया आपने, कहां से कह दिया? जड़श्च बोलते बोलते एक और जोड़ दिया आपने कि ये भी है, ये भी, हाँ मानते हो, हाँ मानते मानते, आगे कह दिया देखो ये वो गाना स्मरण आ गया, वो कि फिल्मी गाना, आज सोमवार है तो कहते कहते हाँ हाँ कहते, वैसा वाला गाना है कुछ। तो ऐसे आपने कह दिया कि ये आत्मा विभु है, हाँ है मानते, फिर जड़ भी है, अरे नहीं नहीं नहीं, ना 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 कह देंगे, ये नहीं होगा सिद्ध। तो कहते 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 आप कुछ भी बोल देंगे, नहीं हम देखिए अंश, इससे क्या जानना चाहिए ना, क्या मानना चाहिए? देखिए, यू शुड नॉट थ्रो दी बेबी आउट विद दी बाथ वाटर। तो ये बहुत सारे करते, सिद्धांति करते, अरे नहीं नहीं योग ठीक नहीं, अरे तर्क ठीक नहीं, अरे ये ठीक नहीं, अरे सांख्य भी नहीं, निराकरण कर दिया, अरे अंश में त्याग करते हैं। भगवान भाष्यकार बौद्धों का भी अंश मानते हैं, उनका साधन मानते हैं, ध्यान करते चलिए अच्छा है, वैराग्य है अच्छा है, इसको सब नहीं त्यागना है। जिस अंश में श्रुति का विरोध नहीं है वो सब अंश किसी भी दार्शनिक का हो, नास्तिक भले ही हो, वो नहीं माने श्रुति से आया, हाँ हमारे माने हमारे गुरु ने बताया, या हमें कुछ तो ऐसे रिविलेशन आ गया, ठीक है, उस अंश में हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि श्रुति है ना। उस अंश में आप विभू का त्याग कर देंगे तो श्रुति का विरोध हो जाएगा, इसलिए नहीं मानते, उनका ग्रंथ नहीं मानते। पर वो जो श्रुति का अंश मानते हैं ना, उस अंश में हम विरोध नहीं करते, क्योंकि श्रुति में विरोध हो जाएगा, इसीलिए विभू अंश तो हम मानते हैं। पर जिस अंश का श्रुति के साथ विरोध है उस अंश को हम नहीं मानते आपका। बाकी ग्रंथ ठीक है, कहते बाकी ठीक है। तर्क के लिए आप कुछ भाषा का प्रयोग करते, पारिभाषिक, हमें लाभ हो रहा है हम मानते। सांख्य सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं, ठीक है, श्रुति में सृष्टि की प्रक्रिया आती है वैसे ही बताते हैं, ठीक है। योगी उसमें अष्टांग योग कहते हैं, अष्टांग योग है तो संपूर्ण अष्टांग योग उपनिषद है, योग उपनिषद में आता है, उसको मानते हैं, क्योंकि श्रुति में को मानते हैं हम, इसलिए श्रुति वो मानते हैं तो उनका ग्रंथ श्रुति से अविरुद्ध है, इसलिए उस अंश में हम निराकरण नहीं करते। किंतु जिस अंश में विरोध है उसका तो त्याग करना है, तो यहाँ पे उसका त्याग कर दिया। क्षमा कीजिए, मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या पॉपअप ही आते जा रहे हैं, इसके 5G के लिए साथ में रखा हुआ है, उसके सुनाई देता होगा, बीप आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कह दिए उस अंश में तो त्याग करेंगे, जड़ अंश में तो त्याग करेंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य व्यापकस्य आत्मन चेतन स्वरूपत्वं श्रूयते।
युक्ते अपि अन्ते मूले आवर्तेषु वर्णयिष्यन्ते। और क्या कहते हैं कि युक्ते अपि, युक्तियां भी जो है ना, ये त्यात पाणी आहे आशुतोष? युक्ते अपि अन्ते मूले क्षमा कीजिए, क्या श्रूयते, व्यापकस्य आत्मने चेतन स्वरूपत्वं श्रूयते। युक्ते अपि अन्ते मूले, आगे बताएंगे। धन्यवाद। आवर्तेषु वर्णयिष्यन्ते, तो आगे बताएंगे, तब देखेंगे, युक्तियां बताएंगे इसमें। तो कहते थे कि श्रुति विरोध दिखा दिए, श्रुति का विरोध दिखा दिए, वो तो युक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो तार्किक में तो श्रुति का विरोध दिखा के निराकरण हो जाएगा, किंतु बौद्धों का नहीं होगा। बौद्धों का जो ग्रंथ है ना, उनमें उनको कहेंगे श्रुति है तो कहेगा हाँ तो वो कहेगा तो हाँ श्रुति है, तो हम मानते ही नहीं है, तो उसको तो तर्क से ही सिद्ध करना पड़ेगा। और ये जो तार्किक है, तार्किक ने तो इतना तर्क लगाएगा, तो वो तो तर्क से कहेगा, श्रुति में कुछ लेकर आएगा, वो श्रुति मानता है, किंतु श्रुति में विरोध दिखा देंगे तो और कोई श्रुति कहेंगे, अरे उसमें एक कोई श्रुति लेकर कह देगा देखिए ये है, हमारा तर्क बैठ रहा है, अर्धजरते न्याय से कर देगा। तो इसीलिए हम श्रुति दिखा के उसका निराकरण करते, पर कहते केवल श्रुति नहीं, आप तार्किक है, आपको आप ही के लाठी से मारेंगे, आप तार्किक है, आपके तर्क के लाठी से उसी से मारेंगे आपको। तर्क भी आपका नहीं हो रहा, आप अपने आप को लज्जा आनी चाहिए, आप अपने को तार्किक कहते हैं, आपका तर्क भी जिस पैर पे खड़ा है वो वीक है, नहीं हो पाएगा, बैठ जाएंगे आप। जब भी हम तर्क का प्रयोग करेंगे तभी आपको तर्क से भी आपका खंडन करेंगे, तो आप ही के वो जो उष्ट्र लघुड़न न्याय है उसी से आप ही के लाठी से आपको मारेंगे, कहते। इसीलिए कहते हैं युक्ते अपि अन्ते मूले, मूल में ही दिखाएंगे, तो तभी देखेंगे 269 से 272 में दिखाएंगे वो। और नको तिथे ठेवू नका, मी खाणार नाही ते आवर्तेषु वर्णयिष्यन्ते, ठीक है, तब देखेंगे, क्षमा कीजिए। तो थोड़ा वो क्या है कि अभी दूसरी जगह उनका समय भिन्न भिन्न है, तो चाय पिला रहे हैं, मतलब पाठ चल रहा है। अतः आत्मा स्वरूपतः जड़ा इति नैयायिकोक्तिर असंगता। इसीलिए क्या हो गया, आत्मा स्वरूपतः जड़ जो आपने कह रहे हैं, अरे स्वरूप से जड़ है, वो तो सिद्ध नहीं होगा। ये नैयायिक की जो उक्ति है वो असंगत है। मूल में क्या है, इसका दूसरा अंक कहां पर है, दूसरा अंक यहाँ पे जड़ रूपस, यहीं पे रख देते हैं पाठ, आगे अगले पाठ में देखेंगे। लैपटॉप चल गया तो लैपटॉप में देखेंगे, नहीं तो इसमें देखेंगे, तो इसका रिकॉर्डिंग यदि चल रहा है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सुखम नित्यं सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः, शुभ दिनम, शुभ गुरु पूर्णिमा।